So today I am going to discuss on one important topic that is called point of percussion. Some students have asked me, sir, please make a video on this topic. Okay, so you can see this problem in the question. There is a hollow sphere, and this hollow sphere of mass m, radius r. There is an impulse I naught. I naught is the impulse given. Okay, so first question is, what is the velocity of center of mass? Okay, we'll solve this question. Through this question only we'll understand what is point of percussion. What is the velocity of center of mass? So very simple. If I give some impulse, this surface is a smooth surface. So for any smooth surface, obviously there is no external force. So what I can do, I can conserve momentum, correct? So for first question, it's very simple. I naught equal to, what is final momentum? mv minus 0. So what is velocity? Velocity is I naught by m. This is very simple part. Okay. Second question. Okay, fine. It will get some linear velocity. Also, it will get some angular velocity. So what is the angular speed? Okay. So what I can do? I can write I naught into x, conservation of angular momentum, equal to, okay, I omega. What is I? 2 by 3 m r square omega. So what is omega? Omega you got 3 I naught x divided by 2 m r square. This is omega. Clear? Very simple. Now third question. Whatever topic I told, this third question is of that. My question is, see, I naught can be given at any point, correct? I have not specified the point previously. So without specifying also, you can do first question, and for second question obviously x you need to know, then only you can find angular momentum. I have done conservation of angular momentum about center of mass, okay, because there is no external force. Now third question, you see very carefully. My question is, what is the value of x? What is this distance from center? What is the value of x such that this sphere starts rolling, no slipping, rolling, starts rolling just after the impulse? नहीं नहीं आता हूँ. What is x? So that it starts rolling just after the impulse. Okay. Now you check what you need to do here. So for pure rolling, this is at a distance of x from center. Okay, impulse is given I naught. Okay, now for pure rolling, here vcm, that is equal to v, and that should be equal to r omega. Okay, so can I write what is v? What is the first question I have found? V equal to I naught by m, equal to r. What is omega? 3 I naught x by 2 m r square. Okay, solving this, what is the value of x here? Get I naught gets cancelled, x equal to m also gets cancelled, x equal to 2r by 3. This is called point of percussion. Okay, still the topic is not clear fully, huh? Again I am going to take one more example. So at what height I should put my force or impulse? I should give impulse such that just after giving impulse it starts pure rolling. This x is called point of percussion. Okay, one more problem. Okay, I'll just delete this one. You need to solve this. Yeah, done. Yeah, so you can see this question again. I'll delete this also. Yeah, see, now this is a rough surface. Okay, rough surface, clear. Spherical objects.
some spherical object, it may be ring, it may be disk, it may be hollow sphere, it may be solid sphere. So first we'll do for arbitrary object, then only we'll put disk, hollow sphere, whatever is given. Now we check this rough surface. I have applied some force. My question is what double, at what distance F is applied so that no friction acts. Here there is no friction. No friction should act. If no friction is acting, for no friction to act, that means lowermost point is at instantaneous rest. Okay, instantaneous rest. Clear? That means pure rolling. Okay, now I'll write equation. First equation is F equal to ma. This is the first equation. Force is mass into acceleration. Assuming that friction is 0. You understood my point? And then what is the second equation? If friction is 0, no external force about center of mass. Can I do? I mean torque about center of mass. Torque equal to F into x equal to I alpha. This is second equation. Solving these two equations, we know that for pure rolling, okay, if there is no external force here, in this case it will be acceleration equal to R alpha. Ground is at rest. That's why acceleration equal to R alpha. Okay, no slipping. Clear? So you write F by m equal to A. What is A? A equal to Fx by I, alpha equal to A by R. Okay, Fx R by alpha, you can write that. Okay, clear? So what is x? X equal to I by mr. Clear? Ff cancel, x equal to I by mr. So this is this point, this x is called point of percussion. Clear? Okay, now we'll do for any general this is for any general body, we'll do for other. For if I consider a disk, okay, so disk I equal to, I mean x, how much you'll get? X equal to I is mr square by 2 divided by mr, so that means r by 2 for disk. Okay, for hollow sphere, what you'll get? X equal to 2 by 3, 2r by 3. Okay, previous laws also we have found, correct? 2r by 3 for hollow sphere. For solid sphere, what you will get? For solid sphere, what you will get? Solid sphere you will get x equal to I by mr, 2 by 5 mr square by mr, 2 by 5 r. Is that clear? See, it's not that rough surface, that's why friction will always act. See, if I apply force at a distance of this x, here no friction will act. Correct? Rough surface does not mean that force should act for pure rolling. ओके, आप बोलोगे सर प्योर रोलिंग तो फोर्स तो लगना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है? क्लियर? ओके, friction will act whenever there is a tendency of slipping. If there is no tendency of slipping, no friction. Now और एक चीज़ बताता हूँ आपको. देखो, हमने x फाइंड कर लिया, ठीक है, x फाइंड कर लिया. अब बताओ
फोर्स मैं ऊपर लगाऊँ, सपोज F1 ऊपर लग रहा है और एक फोर्स जो नीचे लग रहा है, तो F1 और F2 के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझे? समझे? अगर आप ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर आप नीचे फोर्स अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। ठीक है? ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? इसको कैसे करोगे? थोड़ा सा इसको सोचना कि ऊपर फोर्स लगे तो फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे लगेगा। ये आप लोगों के लिए सवाल है। ठीक है? ओके, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, उसमें मैं समझा दूंगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। चला जाओ चला जाओ। ठीक है, when F is applied 3R/4 find the direction of friction। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देयर इज ए हिंज। ओके, देयर इज ए ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है दिया नहीं है, मैंने शायद दिया नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फोर्स कहाँ लगाए कि हिंज फोर्स जीरो हो। हिंज फोर्स जीरो मतलब यू कैन से दिस इज हिंज्ड एंड दिस इज हैंगिंग, करेक्ट, जस्ट लाइक प्रीवियस केस इट वाज रेस्टिंग ऑन सरफेस, इट इज हिंज्ड, सेम। ठीक है, सो इन दैट क्वेश्चन वी हैव डन फ्रिक्शन शुड बी जीरो, हियर हिंज एट हिंज फोर्स शुड बी जीरो। ओके, फोर्स कहाँ पे लगा कि हिंज फोर्स जीरो हो, हिंज फोर्स को फ्रिक्शन जैसा मान लो। हाँ, मैंने ये बोल दिया। अब करो पॉइंट ऑफ परकशन, एक्स निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स निकालो। ठीक है, ओके, तो पहले देखते हैं, एक्स तो निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू आई बाई एम आर। क्या फ़र्क पड़ता है, याद रखो। ठीक है, एक्स इक्वल टू आई बाई एम आर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, अब मैं 3 केस करने वाला हूँ। ठीक है, केस 1, फिर से वही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको एक्स पता है। ठीक है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे। 3 केस से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ये P है, पॉइंट ऑफ परकशन। P इज पॉइंट ऑफ परकशन। केस 1 करते हैं। केस 1, इफ x is greater than xp, that means force acts above point of percussion। जब फोर्स ऊपर लगेगा तब क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, F/m। ठीक है, क्लियर। और अल्फा क्या होगा, Fx बाई आई। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इफ़ एक्स इंक्रीजेस, अगर एक्स ज़्यादा हो तो मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा ज़्यादा होगा। अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो मतलब आर अल्फ़ा ज़्यादा होगा, आर अल्फ़ा ज़्यादा होगा। तो इफ़ एक्सेलरेशन इज़ लेस देन आर अल्फ़ा, इफ़ आर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको पता है इस केस में फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग जाएगा। बेसिकली ये है एक्सेलरेशन, ये आर अल्फ़ा इस पॉइंट का। ठीक है, आर अल्फ़ा फॉर द लोअर मोस्ट पॉइंट। अब तो समझ गए होंगे केस 2 में क्या होगा। केस टू इफ एक्स इज लेस देन एक्स पी, so this is P, understood। force acts here, X here, so in this case क्या हो जाएगा, if X, अब जल्दी बताओ फटाफट,
आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है, और अल्फा इक्वल टू एफ एक्स बाई आई। इफ एक्स इज लेस, जब एक्स कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा कम होगा, अल्फा डिक्रीजेस, तो आर अल्फा डिक्रीजेस। सो इफ आर अल्फा डिक्रीजेस, इफ ए सी एम इज ग्रेटर देन आर अल्फा, तो फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दिस ए सी एम एक्सलेशन दिस आर अल्फा, फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, ना ना आर अल्फा लेस है ना, फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड, सॉरी ये बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आई नीड टू गिव मोर आर अल्फा, नो एक्सलेशन इज मोर, सो इधर हो जाएगा फ्रिक्शन। सो आप ये याद रखो, 3 पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड, ये पॉइंट ऑफ परकशन है, ये सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास नीचे हो गया है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड, ठीक है। इफ एट बिलो पॉइंट ऑफ परकशन, ओके, सो आई नीड टू गिव मोर रोटेशनल मोशन, ओके, यहाँ पे फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, क्लियर। अब ये क्वेश्चन था, ये कर पाओगे, व्हेन एफ इज अप्लाइड एट 3r/4 फ्रॉम सेंटर, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ओके, रफ सरफेस है ऑब्वियसली, तभी तो फ्रिक्शन लगेगा, रफ सरफेस है। सो यू नो व्हाट इज एक्स फॉर दिस, 2r/3, ठीक है, 2r/3 मीन्स 0.66r, आप ऐसे समझोगे ना, 2/3, ओके। तो अब 3r/4, 3r/4 मीन्स व्हाट, 3/4 मीन्स 0.75r, तो ज़्यादा है, ऊपर है ना, तो मैं क्या बोला था, अगर ऊपर है फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, तो आंसर क्या है, फ्रिक्शन एक्स फॉरवर्ड, ठीक है। चलो फिर और एक क्वेश्चन, हाँ, पॉइंट ऑफ परकशन और एक तरीके से समझाया जा सकता है, इसको बोलते हैं कि स्वीट स्पॉट, स्वीट स्पॉट, व्हाई इट इज कॉल्ड स्वीट स्पॉट, इफ यू हैव एवर watched cricket, okay, it's a joke, being an Indian you must have watched cricket, so मैं बोलता हूँ, अगर आप कभी क्रिकेट खेले हो तो आपको पता होगा, अगर ये बैट है, कभी कभी क्या होता है, बॉल आके बैट पे टकराती है और एकदम आराम से छक्का चला जाता है बहुत दूर, और हाथ में एकदम प्रेशर नहीं लगता है, वो जो स्पॉट है, वो जो स्पॉट है उसको बोलते हैं स्वीट स्पॉट, ओके, इसको बोलते हैं हम स्वीट स्पॉट। और उस वक्त हिंज फोर्स विल बी इक्वल टू 0, तो आपको हाथ में कुछ भी फील नहीं होगा कि आपने शॉट मारा, बट इट विल गो, सो एट दैट मोमेंट द हिंज फोर्स विल बी 0, ठीक है। तो फिर से वही एक क्वेश्चन था ना, याद है, मैंने दिया था हिंज फोर्स कहाँ लगाए कि हिंज फोर्स 0 हो, ठीक है, तो आप फिर से वही करो, I/X, I/M/R, ख़त्म, दुनिया ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे आपको IC/MX लेना होगा, ओके। सर इसको थोड़ा सा ना समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला, किस पॉइंट के अबाउट आई लेना है, मैं बता देता हूँ, इसको पहले डिलीट करो, अब ध्यान से सुनो,
suppose there is a suppose there is an object like this, जनरल ऑब्जेक्ट, बैट वैट मत सोचो अभी। तो पॉइंट ऑफ परकशन जो इस ऑब्जेक्ट के लिए होगा ना, पॉइंट ऑफ परकशन जो होगा, these are actually points of percussion, okay, these are pair of points। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो पेयर ऑफ पॉइंट्स, पहले आपने नहीं बताया। एक्चुअली आप अगर सोचो, अगर नीचे यहाँ पे कुछ दूरी पे लग रहा था तो फ्रिक्शन ज़ीरो होता, अगर मैं यहाँ पे हिंज कर दूँ तो यहाँ पे भी एक पॉइंट था, तो दो पॉइंट होता है हमेशा, ठीक है, ठीक है, दीज आर पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। सो इफ आई अप्लाई इम्पल्स हियर J from center of mass, from center of mass it is at a distance x, center of mass, ओके। दूसरा जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का, ये दो पॉइंट है 1 और 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ मास से वो होगा IC/mx। क्लियर? मतलब क्या? मतलब है व्हेन इम्पल्स इज अप्लाइड हियर, इस पॉइंट का वेलोसिटी तुरंत ज़ीरो हो जाएगा, उस मोमेंट पे वो वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर गिविंग इम्पल्स वेलोसिटी ऑफ अदर पॉइंट विल बी ज़ीरो, समझा? जस्ट आफ्टर गिविंग, एक बार समझ लोगे उसके बाद आसान है, कुछ नहीं है। जस्ट आफ्टर गिविंग इम्पल्स टू वन पॉइंट, है ना, टू वन पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ अदर पॉइंट विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो मैं दोबारा इसको समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, दो पॉइंट है, इफ़ यू गिव इम्पल्स हियर वेलोसिटी ऑफ दिस विल बी ज़ीरो, इफ़ यू गिव इम्पल्स हियर velocity of this point will be zero, okay, clear? Is that clear? So I hope you understood, okay, let's stop here। कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछो। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फॉर रिंग एफ ऑलवेज एक्ट्स बैक और इट डज नॉट एक्ट, ओके, ये नहीं ये दूसरा है। अच्छा, रिंग के लिए क्या होगा, रिंग के लिए पॉइंट ऑफ परकशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू I/mr, तो एक्स इक्वल टू आई क्या आ जाएगा, मतलब I/mr² डिवाइड बाई mr, तो एक्स इक्वल टू r हो जाएगा। तो रिंग के लिए एकदम ऊपर पे r पे लगाओगे तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, आई मीन फ्रिक्शन ज़ीरो होगा, उसके और कहीं पे भी लगाओगे तो फ्रिक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने लिखा है कि रिंग एफ ऑलवेज एक्ट्स बैक और इट डज नॉट एक्ट। या रिंग के लिए आगे नहीं लग सकता है बेसिकली, रिंग के ऊपर कहाँ लगाओगे, आई मीन आर तक ही लगा पाओगे ना, उसके ऊपर कैसे लगाओगे फोर्स, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो, ये क्वेश्चंस कर लेना है, एक बार ट्राई कर लेना। चलो फिर बाय।